Today, in this lecture, we will discuss the distance formula. Distance between 2 points. If we have 2 points, px1, y1 and qx2, y2, then distance between p and q is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Although you have to remember the formula, but you should know what is the formula and how it comes out. कैसे आया है हम इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करें. This is the 2 point P x1 y1 and Q x2. Draw a perpendicular or make a triangle. Let this point R. I want to find the coordinate of R. Pragya. QR line is parallel to y-axis. If a line is parallel to y-axis, then what is the speciality of that line? पैरेलल टू y एक्सिस में y0 कैसे आ जाएगा ये बताओ विदुषी. What is the property or the important point if a line is parallel to y axis? y0. कोमल, मैंने लास्ट टर्न पे बताया है बेटा, यू शुड नो ना. आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा लास्ट टर्न? लक्ष्य, x will be always constant. Very good, Laksh. If a line is parallel to y axis, then x will remain constant. ये मैंने आप लोगों को बताया था. देखो यार, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? The line which is parallel to y axis, x will remain constant. तो अगर उस लाइन के एक भी पॉइंट पर मुझे x की वैल्यू पता है तो बाकी सभी पॉइंट के x की वैल्यूज पता है. यस और नो प्रज्ञा? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, if a line is parallel to y axis, on this line x will always constant. ठीक. Parallel to y axis means x will be constant. So if the coordinate of point q x is x2, then it is also x2. Yes or no? Now, moving, if a line is parallel to x-axis, what is the property? Y will always constant. Means same. तो अगर मेरे पास p की वैल्यू y1 है तो यहाँ की भी वैल्यू y1 आएगी. यस और नो? विदुषी, कोमल, प्रज्ञा, क्लियर है? लक्ष्य, उद्धव, देखो यही सब बेसिक है जो कि हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं. मेरी ये बातें समझना. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारी चीजों को निकालना सीखेंगे तभी तो निकाल पाएंगे. नाउ isn't it, what about this distance? ये डिस्टेंस कितना है? Isn't it x2 minus x1? Yes or no? And what about the PQ, मतलब QR?
y2 minus y. Triangle PQR is right angle triangle. Yes or no? Pythagoras sir has given a very good law to us. We have to thankful for him, isn't it? So what about your PQ square? PR means x2 minus x1. RQ means y2 minus y1 whole square, isn't it? So finally you will get PQ as under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, isn't it? Yes or no? देखो बेटा जी, एक चीज समझना, ये जो फॉर्मूले का प्रूफ है ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप आर का कोऑर्डिनेट निकालना सीखते हैं। यस और नो? ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू। ओके, चीजें हैं क्या इंपॉर्टेंट, क्या चीजें हैं वो निकालना हमें आना चाहिए। ऑल्दो 10th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a 1 comma -3 and b -2 comma 7. You have already done it. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2, isn't it? किसी को भी x1 लो, किसी को भी मतलब x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो x1 होगा उसके साथ ही y1 होगा। What about the AB? This is under root of y2 minus y1 मतलब x2 minus x1 कह लो पहले, plus y2 minus y1 whole square. Put the value, you will get our answer. Now it is. दो कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो गया तो दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहे तो वो तो हमारे लिए बहुत इजी टास्क है। ओके, वो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। अब मैं देखो, वी हैव 7 फॉर्म्स ऑफ लाइन, ठीक है। जब हम स्ट्रेट लाइन इन डिटेल पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस ऑल द फॉर्मेट, ठीक है। बट इन बेसिक मैथमेटिक्स वी विल स्टडी सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि व्हाट इज द स्लोप और ग्रेडियंट। दो वर्ड यूज किए जाते हैं, स्लोप ऑब्लिक ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then tan theta is known as slope oblique gradient of line. क्या बताया मैंने ग्रेडियंट क्या होगा विदुषी? Tan theta will be known as slope or gradient. I have given the information, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डेफिनेशन है क्या एग्जैक्ट। ये कोई लाइन है, इट इज अ लाइन एंड इट्स मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या कंसीडर होगा? जहां भी ये कट करता है ना बेटा, इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? बोलो। अब दिस इज नोन एज एंगल थीटा, ओके, एंड नाउ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मूवमेंट लेते हैं। अगर आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो थीटा क्या कंसीडर किया जाएगा?
नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हाँ, मैं ये कह रहा हूं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव लिया जाता है। यस और नो? ये मैंने लास्ट टर्म पे ही बता दिया था। नाउ द टेन थीटा, तो अगर कोई आपसे स्लोप वर्ड यूज करे तो स्लोप आप क्या कहेंगे? टेन थीटा। यस और नो? समटाइम इट इज नोन एज एम। क्या होगा? इट इज इन जनरली नोन एज स्मॉल एम। तो अगर लाइन में कोई आपसे स्लोप कहे तो उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरली स्मॉल एम से वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप को दूसरे किस नाम से जाना जाता है बेटा? दैट इज द ग्रेडियंट। यस और नो? दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। Now we have one thing which is the slope point form of line. Equation of line passing through the point P x1 comma y1 whose slope is small m is given by y minus y1 is equal to mx minus x1. This is the formula for the line which is passes through a given point. Y minus y1 is equal to mx minus x1. आप कहेंगे कि सर आया कैसे है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो बेटा प्लीज, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट एक टर्म है हमारे पास वेरिएबल, प्लीज समझना। आगे चल के एक टर्म मैं आपके सामने यूज करूंगा, लोकस, माइट बी टुडे। लोकस होता क्या है? जो पॉइंट मूव कर रहा है वो जो भी पाथ ट्रेस करेगा दैट विल बी द लोकस। ठीक है? पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता मेरे बच्चों, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना। ठीक है? मैंने क्लियर कट कहा कि पहली बार में नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी, are you getting my point? So don't take any kind of stress, any student, वो ऑटो क्लियर होगा, चिंता मत करना। 2 की टेबल टफ है या इजी है? हुई पापा बताएंगे कितनी बार में याद कराया था। ठीक है? नहीं, आप छोटे बच्चे को याद करा के देख लो, आपको पता चल जाएगा जो 2 की टेबल आज आपको इजी लग रही है वो कितनी टफ है जब when you are learning it first time. Are you getting my point? After getting the knowledge, the table of 2 is very easy. Yes or no? This message is clear to all of you or not? ठीक है? तो ये 2 की टेबल होगी प्रोवाइडेड हम इस पे पूरा टाइम दे लें। ठीक है? व्हाट इज द लाइन? लाइन है क्या चीज? देखो, आप कहेंगे सर यही तो लाइन है। आप सबने 10th क्लास में लाइन ड्रॉ किया है, याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 ऐसा कुछ करते थे आप लोग शायद, सबने किया है आपने। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर वो पॉइंट मार्क करो और मूव कर दो। यस और नो? Isn't it a linear equation? बोलो, linear equation in 2 variable। एंड जब आपने उसको ग्राफ पेपर पे ट्रेस किया था तो वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी, 10th क्लास, याद करो। याद आ रहा है सब कुछ? अब आप इस चीज को समझो कि क्या ये एक्स और वाई वेरिएबल है ना भाई, इक्वेशन में एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल। देखो ये एक फिक्स पॉइंट है P x1 कॉमा y1 थ्रू विच द लाइन विल पास। देखो क्या कहा है, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट
पी x1 कॉमा वाई। उस पॉइंट पर कोई एक लाइन हो, उस पॉइंट पर एक लाइन पास हो रही है हमारी। अब वो लाइन दैट मेक्स an angle theta with the x-axis and your tan theta is m. Yes or no? It is the slope. आप कहेंगे सर ये हमें नहीं पता, तो मैं कहूंगा बेटा ये पढ़ाया है, देखो बताया कि नहीं बताया कि स्लोप को ही हम m कहते हैं। अब हम, हेलो, हाँ कोमल कुछ कह रही हो? नाउ वेरिएबल पॉइंट प्रज्ञा, वो वेरिएबल पॉइंट मे बी हेयर, मे बी हेयर, मे बी हेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वही पॉइंट तो वेरी करते करते पूरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। अब फॉर दैट पॉइंट लेट इट बी this r is a variable point. Let the coordinate of r is x comma y. Let it be. Now again construct a right angle triangle. Q. What is the coordinate of Q? X comma y1. Very good, Bitya. I am really glad and happy with you. A 10th class student has given this answer. X, because the line is RQ line is parallel to y-axis, isn't it? Y1 because PQ line is parallel to x-axis, so y will remain same. Yes or no? Now listen me carefully. If this angle is theta, isn't it this angle is also theta? बोलो, parallel lines है which is intersected by another line, कौन सा एंगल बोलते थे आप लोग इसको? करस्पॉन्डिंग। ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। नाउ tan theta will remain. What is the tan theta? From triangle PQ, tan theta is QR upon PQ, isn't it? Perpendicular upon base. What about the PQ? Isn't it x minus x1? देखो ये लास्ट आर्टिकल जो डिस्टेंस पढ़ाया था उसी जैसा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। Isn't it QR is y minus y1? कोमल, any problem beta? Don't hesitate, ask me. Rejoin करो, ठीक है। If you are having any issue, rejoin it. Okay. Now your tan theta is small m. जब वो आ जाए तो मुझे बता देना पड़ गया। What about the QR? Isn't it y minus y1? What about PQ? Isn't it x minus x1? Means y minus y1 is equals to m times of x. Now tell me any problem. This is the equation of line. कोमल आई कि नहीं आई? Equation of line passes through
a given point. Slope is, कोई दिक्कत बेटा को, एनीवन, विदुषी, भूमि, भूमि का आंसर आ गया, लक्ष्य का आंसर आ गया, उद्धव, बिल्कुल। वंस अगेन वेलकम बैक बेटा। ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। कोमल मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? These are the point A. This is the point B. This length OA is known as x-intercept. This length OB, this is known as in generally small b, y-intercept. आप इसको कुछ और भी ले सकते हैं। This OB is y-intercept, OA is x-intercept. Done? बेटा ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द x-intercept, व्हाट इज द y-intercept. अब ये बताओ x-intercept अगर ये लेंथ स्मॉल a है तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कोमल? x एक्सिस पे b आएगा, विदुषी a,0 कोमल, on the x axis it is a,0 because y will be 0. Pragya, what about the coordinate of b? 0, so we can write it like that. For x-intercept, put y is equals to 0 in the of line. ये बात समझ में आ रही है सबको? लक्ष्य, भूमि, उद्धव, कोमल, देखो एक्स इंटरसेप्ट आखिरकार है क्या चीज? मतलब देखो सबसे पहले बेटा इतना याद रखना कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन तो मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरसेप्ट. पॉइंट जिस जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां से लेके ओरिजिन की डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो एक्स एक्सिस को कट कहाँ करेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो. भाई एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना. तो उस एक्स एक्सिस के पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे वाई को 0 करना पड़ा. यस और नो? सेकेंड पॉइंट मैं अभी और ले लूंगा. फॉर वाई इंटरसेप्ट put x is equals to 0 in the equation of line oblique curve.
प्लीज एक चीज समझना, एक्स इंटरसेप्ट के लिए किसको जीरो करेंगे, वाई को, और वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको जीरो करेंगे, एक्स। ठीक है, प्लीज मैं एक क्वेश्चन यहां ले रहा हूं। हाँ बेटा, ये रहा ना बेटा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए किसको जीरो करेंगे बता, हाँ, और वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको जीरो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट ए आपने डिफाइन किया है कि दिस पॉइंट ए इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। ए ए ए है कहाँ, ए बेसिकली एक्स एक्सिस पे है, और बी कहाँ है, बी बेसिकली वाई एक्सिस पे है। प्लीज नाउ फाइंड द एक्स and y intercept for the line 3x plus 2y plus 6 is equals to। जरा बताओ मुझे आंसर फटाफट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, बिल्कुल करो, बिल्कुल सही है, पुट y is equals to 0 in 3x plus 0 plus 6। एक मिनट बेटा, कुछ अचानक से स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, थ्री एक्स प्लस 0 plus 6 is equals to 0 implies 3x is equals to minus 6, then x is equals to minus 2. This is your x intercept. What about the y intercept? Put x equals to 0 in equation. यही करेंगे ना, देखो हमेशा ये याद रखना कि आप लोग किसको जीरो कर रहे हो, क्योंकि ये यही नहीं बेटा, आगे बहुत काम आता है ये सारी चीज। 0 plus 2y plus 6 is equals to 0 implies y, the value of y is minus 3. Now you can consider it, please. You can consider it. This point minus 1, minus 2, minus 3, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So what is the line? Line is passes through 0 comma minus 3 and 0 comma minus 2, minus 2 comma 0, isn't it? You are having the 2 point, join the line. Any problem? ठीक है, तो बेटा ये है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं और वाई इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं, और ये होता क्या है मैंने ये एक्सप्लेन किया आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन दी है, फिर वो एग्जैक्टली है क्या वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत फिर क्या बोल, कोमल, जोशी, लक्ष्य, द एंड भूमि। Now we are moving for the slope intercept form of line. Please
अब कहीं ना कहीं स्लोप होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे बच्चों। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर रहेंगी हमारी। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट में डिफाइन क्या किया गया, सबसे पहले हमें उस पर बात करना चाहिए। व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस, isn't it? Let the, what is the y intercept? For y intercept क्या करना होता है? For y intercept, put x is equals to 0 in equation. So this will become y minus y1 is equals to m 0 minus x1 means y minus is equals to y1 minus mx. Any problem? बोलो। अब मैं कह सकता हूं कि let this value y1 minus mx1 is equals to, जनरल वे में ये सी डिफाइन किया गया है बेटा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इसीलिए हम लोग जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग को बिल्डिंग कहा गया तो आप उसे बिल्डिंग ही बोलते हैं ना, हाँ या ना? अब अगर आप पिक्चर हॉल के सामने हैं तो आप इसे पिक्चर हॉल बोलते हैं कि बिल्डिंग बोलते हैं, बताओ? मतलब एक स्पेसिफिक बिल्डिंग हो गई वो, यस और नो? Although this is the y-intercept, agree, this is y-intercept, but we call it as c in the slope-intercept form of line. This is y-intercept is equals to, अब एक चीज समझना प्लीज, अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, isn't it? Y is equals to mx plus y1 minus mx, yes or no? रीअरेंज करो, रीअरेंज करो बेटा, ये होगा कि नहीं होगा बोलो? कोमल, इस y1 को इधर ले जाओ और m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, होगा ना? नाउ प्लीज, isn't it c? देखें, इसी को तो आपने c कहा है, हाँ या ना? So y is equals to mx plus c is slope intercept form. क्या है बेटा? y is equals to mx plus c is a slope intercept form of line. अगर मैं इस जगह पे बात कर रहा हूं प्लीज, ये एंगल है थीटा, तो यहां से tan थीटा मुझे मिला स्लोप। व्हाट अबाउट द सी? सी है क्या? दिस इज द y इंटरसेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज y is equals to mx plus
आपको दो फॉर्मेट मैंने बताए अभी। एक फॉर्मेट था स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब हमेशा नाम याद रखना, प्रज्ञा, मेरा नाम गणेश है, ठीक है, घर का। पहले ये एक्चुअल नाम था, ठीक है, प्रज्ञा कोई नहीं बता रहा, मैं सबको बता रहा हूँ ना। मेरा पहले एक्चुअल नाम ही गणेश था, जिसको मैंने चेंज करवा के आलोक, मैंने नहीं करवाया, मेरे प्रिंसिपल मैम द्वारा प्रपोज्ड एक्सेप्टेड बाय माय फादर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे लोग गणेश भी बोलते हैं, मुझे आलोक भी बोला जाता है, और बचपन में लोग नेताजी भी बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि मैं अलग अलग आदमी हूं? मैं तो एक ही आदमी हूं ना, और उसी आदमी के कई नाम हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से लाइन बेचारी एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्मेट में, अब कोई किस फॉर्मेट में पूछता है वो हमें याद होना चाहिए। तो आज अभी आप लोगों का मेन काम क्या होगा पता है? रटना। आप कहेंगे सर रटवा रहा हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल, ठीक है। दैट इज कि व्हाट, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो आपको तुरंत कहना होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर p is the point x1 comma y1 through which the line is passes and m is the slope. और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, you will tell him y is equals to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept. Yes or no? Now we are going to solve this question. Find the equation of line which passes through a point A 2 comma minus 3 whose slope is minus 3. Also find the x and y intercept of this line. Okay, so start with it. Equation of line passes through a given point x1 comma y1 whose slope is m is given by y minus y1 is equals to mx minus x1. यही था ना? तो y माइनस y1 का मतलब माइनस 3, m का मतलब माइनस 3, x माइनस x1 का मतलब दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज m. ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड. नाउ इट इज y plus 3 is equals to minus 3x plus 6 means equation of line is 3x plus y minus 3. अब बताओ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या आएंगे, बोलो फटाफट। कोमल x इंटरसेप्ट बोलो और विदुषी y इंटरसेप्ट बोलो। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं बेटा? कोमल बिल्कुल, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 करते ही x की वैल्यू कितनी आ गई बिटिया? ये हो गया x इंटरसेप्ट। इजी है कि टफ है बोलो? इजी है। बिल्कुल बेटा, आपने सही बताया, मैंने सुन लिया। दिस इज y इंटरसेप्ट। दीज आर कॉन्सेप्ट्स। आपने अब तक दो फॉर्मेट पढ़ा, अब हम बात करते हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through 2 points Px1, y1 and Qx2, y2 is y minus y1 is equals to y2 minus y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। अब देखो बेटा, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी प्रज्ञा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस, मतलब मुझे केवल अब m निकालना है ना, m ही तो निकालना रहा। आ जाओ देखो, ये रहा पॉइंट P x1 y1, ये रहा पॉइंट Q x2 y2। if you are joining this is the line, yes or no? construct the right angle triangle. This is the theta, now this is the theta, okay। अब what is the coordinate of point S? Uddhav, very good, this is x2, this is y1, isn't it? x2 minus x1, ऐसा ही तो सारा काम किया है आज हमने, isn't it? y2 minus y1, okay। what about the n? tan theta। अब कोमल, जिस समय आपका नेटवर्क नहीं कर रहा था ना, उस समय यही कॉन्सेप्ट मैं वहां अप्लाई कर रहा था। अब आपको यहां से सब समझ में आ जाएगा। एस क्यू अपॉन पी एस, यस और नो? एस क्यू अपॉन पी एस मीन्स y2 minus y1 upon x2, y minus y1 is equals to m x minus x। ये लाइन होता है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, यू विल गेट। तो अगर मुझे 2 पॉइंट दे दिया जाए तो आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन और नॉट? If they give me 2 points, then I can find the slope of the line. That is y2 minus y1 upon x2 minus x1। और 2 पॉइंट देते ही मैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूँ, which is my next question। क्या है? Find the equation of line which passes through the point A 1 comma minus 3 and B minus 4 comma 6। Also find x and y intercept। Solve it, solve करो please।